अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मशरिक़ वस्ता जंग के असरात, स्टॉक मार्केट क्रैश, सेंसेक्स खुलते ही 1900 पॉइंट्स टूटा। बेरोजगारी बढ़ाने में मोदी हुकूमत धुरंधर, उसके पास मसले का कोई हल मौजूद नहीं, कांग्रेस का इल्जाम। पांच रियासतों के इंतखाबात की तैयारी, इलेक्शन कमीशन ने 25 लाख से ज़ायद एहलकार तैनात किए। दिल्ली में दोबारा फसादात जैसे हालात पैदा करने का बीजेपी पर राहुल ने लगाया इल्ज़ाम। अवाम किसी के बहकावे में ना आए, गांधी ने की अपील। सांप के जहर के केस में यूट्यूबर एल्विश यादव को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर खारिज कर दी। और शुमाली हिंदुस्तान पर बादलों का पहरा, दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बारिश का अलर्ट। तो ये थी सुर्खियाँ, पेश खबरों की तफसील। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असर अब आलमी मालियाती मंडियों पर साफ नजर आने लगे और इसी सिलसिले में हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में आज ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। कारोबार के आगाज़ के साथ ही सेंसेक्स अपने पिछले बंद 76,704 के मुकाबले में 74,000 पर खुला और चंद ही मिनटों में मज़ीद गिर गया, जिसके साथ ओपनिंग में ही तकरीबन 1900 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। क्या कहा माहिरीन ने इस गिरावट पर, आइए जानते हैं। Yeah, see, we cannot forget that we are still into that uncertain scenario of the market. A lot of uncertainty is there. A lot of things are happening globally, and especially crude prices. There certainly we need to be very, very careful because the way they have uh, inched up from their lows of $100 to almost $110, it is something which is concerning to emerging markets and especially to Indian markets. And maybe because of that, today we are witnessing good amount of sell-off in our markets. It is down more than 500 points today. So broadly, we are of the view that we need to be very, very careful in this market. If there is a very short-term view, then certainly stay away from taking any short-term position in the market. If there is a long-term position, long-term view, then only you should look for taking some bets. Otherwise, it is better to be stay away for the time being. No, see, this particular market is, see, right now means, see, we are not panicking in the market, and one should be very, very watchful, I'm saying, instead of panicking in the market. But the way the rise in crude price, and we are majorly depend upon the import of crude oil. So whenever there is such type of scenario, and if the problem, the source of this particular problem is Strait of Hormuz, from where all these particular things are getting exported. If that is under, let's say, a lot of this uncertainties and the fear of furthermore extension of the war, I think in that case we need to be careful. And because of that only, I think the market is preparing for that. Means it's very difficult to say. And in the past also, when there was war between Russia and Ukraine, we saw oil prices move to the levels of $140 per barrel. This time we saw peak up to $120 per barrel. But in case on, let's say, any day war intensifies, then in that case we can even expect the levels of 140 and maybe, and see, market discounts a lot of things well in advance. So what is happening currently is already has happened. Now, what can be the possibilities? On that, the market starts discounting. And I think a lot of hedging is happening in the market because overnight risk is very, very high. Yesterday also, you can see that the markets were very close to 24,000 levels, but today it opened 500, 600 points lower only on the because on the back of fresh attacks on Iran. And now Iran has also warned that they are going to strike missiles on Gulf nations. So this is something which is new to the market. This has not happened in the past. You must have seen past में जितने भी वॉर हुए, कभी गल्फ नेशंस, सऊदी, दुबई, कतार, बहरीन, ये कभी लाइमलाइट में नहीं आए थे.
But this time, because of all these things, it is like something which is really worrisome, and we need to be careful in this market. कांग्रेस ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत के पास बेरोजगारी जैसे संगीन बहरान का कोई हल नहीं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया वो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की है। इसका हवाला देते हुए इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी हुकूमत बेरोजगारी बढ़ाने में माहिर है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ताल्लुक से एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा गया है कि बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ाने में मोदी हुकूमत माहिर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात और मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को पुरअमन, शिफाफ और लालच से पाक बनाने के लिए 25 लाख से ज़ायद अहलकारों की तैनाती मुकम्मल कर ली है। कमीशन ने 15 मार्च को आसाम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में इंतखाबात का ऐलान किया था, जिसके बाद इंतखाबी अमल को मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल कराने के लिए वसी पैमाने पर तैयारियाँ की गई है। राज्यसभा में अरकान पार्लियामेंट की विदाई के दौरान हज़ब इख्तिलाफ के कायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने मज़ाहिया अंदाज से सभी को लोट पोट कर दिया। इन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म एच.डी. देवगौड़ा और मरकज़ी वज़ीर रामदास अठावले पर ऐसी बातें कहीं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ऐवान बाला से खिताब करते हुए खड़गे ने एच.डी. देवगौड़ा का ख़ास तौर से जिक्र किया। इन्होंने तंज़िया अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि मैं देवगौड़ा को 54 साल से जानता हूँ, उनके साथ ही मैंने काम किया, लेकिन अचानक क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। इन्होंने मोहब्बत हमारे साथ की, लेकिन शादी मोदी साहब के साथ कर ली। ये अचानक ही हुआ, लेकिन कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं। खड़गे की इस बात पर पीएम मोदी समेत पूरा ऐवान कहकहों से गूंज उठा। मैं सबसे पहले श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी नहीं है, वो तो वहाँ उपस्थित थे लेकिन यहाँ नहीं है, तो एच.डी. देवेगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूँगा। वे प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूँ, उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप ऐसा माने मुझे मालूम नहीं है। सर शरद पवार जी एक राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ भी हमारा दशकों का जुड़ाव रहा है। मुझे खुशी है कि वे दोबारा इस सदन का मार्गदर्शन करेंगे। संसदीय मामलों के गहन जानकार हमारे डीएमके के साथी तिरुचि जी अगले 6 साल सदन की कार्रवाई में फिर भाग लेंगे और उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातों को रखा। रामदास अठावले साहब जिनका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं। हमेशा आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। जो कविता उन्होंने लिखती है वो सिर्फ आपके बारे में लिखती है, लेकिन मैं समझता हूँ ये 6 साल अब तो पूरा मिला है उनको, आगे तो जरा कम करेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। सर दिग्विजय सिंह जी को पूरा देश जानता है। एक दशक तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। राज्यसभा सांसद और शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया और वो रिपोर्ट भी आज उन्होंने आपके सामने पेश किया। सर केटीएस तुलसी और अभिषेक मनु सिंघवी ने संसदीय वाद विवाद को गरिमा दी। नागरिक स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता और विभिन्न मुद्दों पर उनके भाषणों ने सदन पर गहरी छाप छोड़ी है। हमारे मुखर साथी शक्ति सिंह गोयल और नीरज डांगी की बातें करते हुए मैं भावुक होता हूँ, इसीलिए कि अपनी योग्यता और क्षमता के साथ इन्होंने सराहनीय योगदान दिया है। सदन के साथ साथ संसदीय समितियों में भी अच्छा काम किया है। विभिन्न विधेयकों पर चर्चा और ज्वलंत विषयों पर पूरी तैयारी के साथ अपनी बातें रखी और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। श्रीमती रजनी पाटिल समाज कल्याण, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर लगातार मुखर होते रही। मुझे भरोसा है
कि श्रीमती फूलो देवी नेतन कमजोर तबकों की बातों को सदन में आगे भी मजबूती के साथ रखेगी और उनको 6 साल का मौका और मिला है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत फैलाकर दिल्ली में दोबारा फसादात जैसे हालात पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया है और लोगों से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। मिस्टर गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि बीजेपी चाहती है कि मुल्क हिंदू मुसलमान के मसाइल में उलझा रहे ताकि लोग मुख्तलिफ दीगर मसाइल पर सवाल ना पूछ सकें। इन्होंने होली के मौके पर दारकूमत के उत्तम नगर के वाक़े का जिक्र करते हुए कहा, उत्तम नगर के लोगों ने तशद्दुद की भारी कीमत चुकाई है। हिंदुस्तानी रुपया अपनी गिरावट के सिलसिले को जारी रखते हुए जुमेरात को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93 रुपये की नई तारीखी कम तरीन सतह पर पहुंच गया, जो 93 के निशान को अबूर करने के बाद रिकॉर्ड दर्ज हुआ। मुल्की करेंसी ने इस हफ्ते के आगाज़ में ही कमज़ोरी के आसार दिखाए थे, जब ये 92 के निशान से नीचे गई और बाद में मज़ीद नुकसान के बायस मौजूदा तारीखी सतह पर पहुँच गई। ये मुसलसल गिरावट बैरूनी दबाव और नाजुक मार्केट जज्बात की अक्कासी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर एलविश यादव के खिलाफ दर्ज इस मुजरिमाना मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें उन पर वीडियो शूट में सांप के जहर के इस्तेमाल के इल्ज़ामात लगाए गए थे। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस मादे जहर का तस्करा किया जा रहा है वो कानूनी फहरिस्त में शामिल नहीं है। चीन के साथ ताल्लुकात के बतदरीज दोबारा पटरी पर आने के दरमियान हिंदुस्तान ने बरतानिया में हाई कमिश्नर विक्रम के दौराई स्वामी को चीन में अपना नया सफ़ीर मुकर्रर किया है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में जारी करते हुए बताया कि बरतानिया में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर विक्रम के दौराई स्वामी को चीन में हिंदुस्तान का नया सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। इंडियन फॉरेन सर्विस के 1992 बीच के सीनियर अफसर मिस्टर दौराई स्वामी प्रदीप कुमार रावत की जगह लेंगे। हिंदुस्तान के सबसे बड़े निजी बैंकों में शुमार होने वाले HDFC बैंक को एक बड़े धचके का सामना करना पड़ा, जहां चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बैंक की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये इस्तीफ़ा 18 मार्च से मौसर हो चुका है। इस गैर मुतवक्को फैसले ने न सिर्फ बैंक के अंदर क़यादत के हवाले से सवालात खड़े कर दिए हैं, बल्कि स्टॉक मार्केट में भी उसके फौरी असरात देखने को मिले। फ्रांस ने हिंदुस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम ताउन के लिए हिंदुस्तान के साबिक़ सफ़ीर जावेद अशरफ को अपने मुमताज़ तरीन शहरी एज़ाज़ात में से एक कमांडर ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से नवाजा है। मिस्टर अशरफ ने जुलाई 2020 से दिसंबर 2024 तक फ्रांस और मोनाको में हिंदुस्तान के सफ़ीर के तौर पर अपने दौरे मुलाजिमत के दौरान हिंद फ्रांस स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को गहरा करने में कलीदी किरदार अदा किया था। यहाँ वाक़ फ्रांसीसी सफारत खाने में मुनक़िदा एक ख़ुसूसी तक़रीब में फ्रांस के सफ़ीर थायरी मैथो ने उन्हें इस एज़ाज़ से नवाजा। उत्तर प्रदेश में क़ालीन के काम क़दीम रिवायत है और यहाँ के क़ालीन मुल्क में मशहूर है। नस्ल दर नस्ल इस फ़न को तरक्की मिली और अब दुनिया भर में यहाँ के क़ालीन मशहूर हो गए हैं। यहाँ ख़ास बात यह है कि नौजवान नस्ल अब जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क़ालीन के नक्शों को खूबसूरत बना रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जाना जाता है कालीन नगरी के नाम से, और यहाँ कालीन जो बनाए जाते हैं हैंडमेड कालीन हैं, हस्त निर्मित कालीन। और जब हस्त निर्मित कालीन है तो वहाँ पे क्रिएटिविटी एंड आर्ट उसके साथ जुड़ जाता है। भदोही के पास आज कई रिकॉर्ड्स हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ अवेलेबल हैं। The youth have driven their liking into carpets because of their aesthetic mindsets, and it has evolved as they are like youth are now more into natural fibers, sustainability. कालीन हम बना पा रहे हिंदुस्तान में, वो पूरी दुनिया में हमारे जो कंपटीटर रहे वो टर्की, ईरान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, इजिप्ट, हम लोगों ने सभी को बीट करके हम लोगों ने अपना एकमात्र झंडा गाड़ा है पूरी दुनिया में भदोही के कालीन का। तो हमारा कोई कंपटीटर अब नहीं रह गया। अब सरकार इस पे ध्यान दे रही है, अभी इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है। भदोही के आसपास के ग्रामीण इलाकों में अब महिलाएं भी इस बदलाव का हिस्सा बन रही हैं। IICT जैसी संस्थाएं इन महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो खुद डिजाइन समझने, बुनाई करने और काम संभालने लगी हैं। इससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ रही है बल्कि आत्मविश्वास भी। घर से निकलकर अब वो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा हैं।
ट्रेनिंग दी थी तो उसमें क्या सिखाया गया, पहले ताना करना, फिर उसके बाद उसे लूम पे चढ़ा के उसके बाद बिनाई होती थी। अपने हमारे आर्टिज़न हैं, ये लोग लोकल गांव के हैं एंड अपने उत्साह से समय से आते हैं, समय से आके पूरे समय यहीं ये लोग तन मन से जो है यहाँ पे काम सीखते हैं। तेज़ी से बढ़ती गर्मी की शिद्दत के दौरान महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में हल्की बारिश शुरू हो गई है। मौसम ने पूरी तरह यू टर्न ले लिया है। लोग मार्च में फरवरी की सर्दी महसूस करने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली हिंदुस्तान में अगले 2 या 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का इम्कान है। आसमान पर गहरे बादल छाए रहेंगे, तेज़ हवाएं चल सकती है और इस दौरान हल्की बारिश होगी। उत्तर प्रदेश से बिहार तक मौसम में तब्दीली देखी गई है। जम्मू कश्मीर में 20 मार्च तक कई मुकामात पर वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश या बर्फबारी की पेशगोई की गई है। वादी चिनाब और जनूबी कश्मीर के कुछ बालाई इलाकों में भी दरमियाने दर्जे से भारी बर्फबारी की तौक़े है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मशरिक़ वस्ता जंग के असरात, स्टॉक मार्केट क्रैश, सेंसेक्स खुलते ही 1900 पॉइंट्स टूटा। बेरोजगारी बढ़ाने में मोदी हुकूमत धुरंधर, उसके पास मसले का कोई हल मौजूद नहीं, कांग्रेस का इल्जाम। पांच रियासतों के इंतखाबात की तैयारी, इलेक्शन कमीशन ने 25 लाख से ज्यादा एहलकार तैनात किए। दिल्ली में दोबारा फसादात जैसे हालात पैदा करने का बीजेपी पर राहुल ने लगाया इल्जाम। अवाम किसी के बहकावे में ना आए, गांधी ने की अपील। सांप के जहर के केस में यूट्यूबर एल्विश यादव को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर खारिज कर दी। और शुमाली हिंदुस्तान पर बादलों का पहरा, दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बारिश का अलर्ट। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।